اس کی دلدوز چیخ نیچے گرتے ہوئے شہتیروں، تختوں، اینٹوں کے ٹکڑوں اور دریا کے شور میں ڈوب کر رہ گئی۔ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحے میں صرف غبار کے بادلوں سے تیزی کے ساتھ آسمان کی سمت پرواز کرتے ہوئے کبوتر کو ہی دیکھ سکا۔ میت کو محل میں لا کر غسل دیا گیا۔ اس بری طرح زخمی ہو گیا تھا کہ پہچانا نہیں جاتا تھا۔ کشادہ کمرے میں جہاں چند گھنٹے قبل تک سحری کھانے کے سلسلے میں سارا خاندان موجود تھا، قراقوز بیگم قتلوغ نگار خانم سے لپٹی ہوئی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں ہی وجہ ہوں حکمران کی موت کی۔ ہائے خانم آیا، کیوں جگایا تھا میں نے، کیوں جگایا تھا اپنے سرتاج کو؟ ہائے کتنی منحوس ہوں، میں ہی قصوروار ہوں ان کی موت کی۔ میں قتلوغ نگار خانم کو یاد آ گیا کہ مرزا ان لوگوں کے سامنے کیسے عجیب انداز سے باتیں کر رہا تھا، لگتا تھا جیسے وصیت کر رہا ہے۔ یہ یاد کر کے وہ زور زور سے رونے لگی۔ ہائے ہائے، ارے نہیں، انہیں اپنی موت کا احساس کیسے ہو گیا تھا؟ کس طرح کی باتیں کر رہے تھے آج وہ ہم سے؟ کس طرح کی باتیں؟ قراقوز بیگم قتلوغ نگار خانم سے الگ ہو کر بیٹھ گئی، سسکیاں بھرنے اور سر پیٹنے لگی۔ ہائے خانم آیا، میں نے اپنے فرزند کو پیدا ہونے سے پہلے ہی والد سے محروم کر دیا۔ وہ شدت غم سے دھیرے دھیرے بولی۔ انہیں تو گزشتہ شام کو پہلی بار علم ہوا تھا اور انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی، خدا ہمیں فرزند ہی عطا کرے۔ فرزند؟ لیکن خود اس کے والد اب کہاں ہیں؟ کہاں؟ ہائے کیوں بیدار کیا تھا میں نے؟ کیوں بیدار کیا تھا میں نے حکمراں کو؟ اس سے تو کہیں اچھا تھا کہ مجھ کو موت آ جاتی، کراڑے پر سے میں ہی گر پڑی ہوتی۔ ایسی بات منہ سے نہ نکالیے عزیزہ ہمشیرہ، آپ کو تو فرزند کی خاطر جینا چاہیے، اور کراڑے کے کنارے پر تو ہم سبھی کھڑے ہیں، خطرناک کراڑا تو ہم سبھی کا منتظر ہے۔ یا خدایا! قتلوغ نگار خانم سوچنے لگی کہ شوہر کی یہ اچانک موت کیا عجیب و غریب اور پراسرار نہیں ہے؟ جنگ جو بادشاہ اور بہادر سپہ سالار مرزا عمر شیخ جانے کتنی ہی بار ننگی تلوار لیے گھوڑے کو میدان جنگ میں سرپٹ دوڑاتے رہے تھے، لیکن وہ وہاں نہیں مارے گئے تو دریا کا کراڑا منہدم ہو جانے سے۔ کیا یہ محض اتفاقی بات ہی ہے؟ کہیں یہ خاندان کی بدبختی کا اشارہ تو نہیں؟ شوہر کے آباء و اجداد کی قائم کی ہوئی سلطنت کیا کراڑے پر بنی ہوئی عمارت جیسے نہیں ہے؟ اقربا کچھ جنگوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا یہ ملک۔ قتلوغ نگار خانم کے پردہ تصور پر اچانک مستقبل کی تصویریں نمودار ہونے لگی۔ وہ لرز اٹھی کیونکہ اسے اپنا واحد بیٹا، اپنا لخت جگر بابر دکھائی دے گیا۔ اس نے سوچا کہ باپ کی زندگی کا چراغ کراڑے پر سے تباہ کن دھارے میں گر جانے سے گل ہو گیا، اب یہ بے درد لہریں کہیں بابر کو بھی تو بہا نہ لے جائیں گی۔ نہیں، اللہ انہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ اچھا، اب میں اجازت چاہتی ہوں بیگم۔ اس نے قراقوز بیگم سے معذرت کی۔ جا کے اندجان کو قاصد روانہ کروں گی۔ بیٹے کو والد کے انتقال کی اطلاع مجھے خود ہی بھجوانی چاہیے۔ قاسم بیگ شاہ مرحوم کی اس منجلی بیگم کا برابر وفادار رہا تھا، اور اب وہی غمزدہ اور شکوک اور اندیشوں کی ماری ہوئی قتلوغ نگار خانم کے خط کو اس کی والدہ ایستان دولت بیگم کے پاس پہنچا سکتا تھا، جو اندجان سے باہر واقع شاہی حویلی میں بابر کے ساتھ رہتی تھی۔ لیکن خانم کا یہ خط جس وقت قاسم بیگ کے ہاتھوں تک پہنچا، اس وقت سلطان احمد تتبل، جسے فاطمہ سلطان نے خفیہ طور پر اندجان روانہ کیا تھا، دریا سیر کا پل پار کر چکا تھا اور اس طرح قاسم بیگ سے کافی آگے نکل گیا تھا۔ اس نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف نامبذول کرانے کے خیال سے صرف ایک سپاہی اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ حالانکہ گزشتہ روز جب وہ اندجان سے آخسی آیا تھا تو 60 گھڑ سوار سپاہی اس کے ہم رکاب تھے۔ آج فاطمہ سلطان نے اس سے بہت بہت بڑے انعام کا وعدہ کیا تھا۔ اگر وہ فاطمہ سلطان کے وفادار بیگوں کو متحد کر کے مرزا بابر کی بجائے مرزا جہانگیر کو تخت پر بٹھانے میں کامیاب ہو جائے تو احمد تتبل کو عمر شیخ کے دربار میں کئی برسوں سے دوسرے درجے کے بیگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑ رہا تھا۔ یہ اس کے لیے توہین آمیز بات تھی۔ اس صورتحال کو وہ بہت جھیل چکا تھا۔ جہانگیر کے تخت نشین ہونے کی صورت میں اس کا وزیر اعظم کے عہدے پر مامور ہونا یقینی تھا، اور اتنے کم سن لڑکے کی بادشاہی میں وزیر اعظم بننا کیا خود ہی تخت شاہی پر جلوہ افروز ہونے کے مترادف نہ تھا؟ تب تو اسے خانزادہ بیگم کی تصویر کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی، وہ تو خود خانزادہ بیگم ہی کو حاصل کر لے گا۔ اور یہ ایک حقیقت تھی کہ ایسی حور کے آقا بن جانے کے خواب سے زیادہ شیریں خواب احمد تتبل نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔
नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली एपिसोड से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। अंदजान में अभी अमन का दौरा था। शहर से बाहर वाक़ई बुलंद 4 दीवारी वाली खूबसूरत हवेली के फाटक पर मामूल के मुताबिक पहरेदार मामूर थे। जंग तो 4 दीवारी के अंदर हो रही थी। मिर्जा बाबर बड़े जोश के साथ फन्ने हरब सीख रहा था। उसने घोड़े को सरपट दौड़ाते हुए लगाम छोड़ दी और मुस्तादी और पूरी ताकत से तांत को खींचकर तीर चलाया। सनसनाता हुआ ये तीर तेजी से जाके उस तख्ते में चुभ गया जो निशाने का काम दे रहा था। चनार के साये में खड़े हुए घुड़सवार वलीअहद को निशानेबाजी की मशक करते देख रहे थे। वहां से मजीद बेग अपने मुश्की घोड़े पर सबसे पहले निशाने के पास पहुंचा। वो मिर्जा बाबर का उस्ताद था। बाबर अपनी जगह वापस लौट आया तो उस्ताद ने जानबूझकर लापरवाही से कहा, निशाना कुछ ऊंचा बांधा गया था, लेकिन ये देखकर के लड़के के चेहरे पर उदासी छा गई है, फौरन ही इजाफा किया, बस जरा ही सत ऊंचा है। वैसे तीर चलाने का अंदाज बहुत खूब था। मजीद बेग ने तीर को तख्ते से निकालकर निशाने की गहराई अपनी उंगली से नापी और बाबर को दिखाई। वलीअहद, आपके हाथों में बला की ताकत है, शेर के पंजे हैं। हमारे हुक्मरान ने आपका नाम बाबर यूं ही थोड़ी रखा है। मिर्जा बाबर के मुहाफिजीन, खिदमतगार और खेल कूद में साथ देने वाले हम उम्र भी निशाने के तख्ते के पास जमा हो गए। सबको मालूम था कि कमान बाबर की उम्र और कद को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है। फिर भी सबने खूब तारीफें की, लेकिन बाबर को खुद भी ये सब मालूम था। शेर के पंजे तो मेरे वालिद मोहतरम के हैं, मैं खुद देख चुका हूँ। उनके तीर मेरे तीरों की निस्बत 10 गुना ताकत से निशाने में सरायत कर जाते हैं। वो तो ताकतवर से ताकतवर जवान पर भी मुक्के से वार कर दें तो बेचारा जमीन पर ढेर हो जाएगा। आपका ये फरमाबरदार भी यही अर्ज करना चाहता है कि आप आली जना पर पड़े हैं, इसलिए आपके हाथ शेर के पंजों के से हैं। मजीद बेग ने बड़ी जहानत से बात का रुख मोड़ दिया। बाबर मुस्कुराया और खामोशी के साथ धूप से सुतलाई हुई अपनी कुशादा पेशानी और ऊपरी होंठ से पसीने के कतरे पोंछ डाले। गर्मी में शिद्दत पैदा होती जा रही है वलीअहद, ऐसे में रोजा रखने से आदमी नढाल हो जाता है। इफ्तार के वक्त तक आपको किसी तरह की कमजोरी न महसूस होनी चाहिए। साये में बैठकर जरा दम ले लीजिए। आपका हुक्म बरदार आपसे रुखसत होने की इजाजत चाहता है। इसे अंदजान के दिफा की तैयारियां करना है। लेकिन बाबर को आराम पसंद न था। उसका जी तो घूमने फिरने और शरारतें करने को चाह रहा था। मजीद बेग के वहां से जाते ही उसकी आंखें शरारत से चमक उठी। उसने घोड़े को रोककर चारों तरफ नजरें दौड़ाईं और अपने एक मुहाफिज को इशारे से पास बुलाया। फिर बाबर ने हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर तारे वाले घोड़े की काठी को झटक के देखा कि कसी है कि नहीं। काठी मजबूती से कसी हुई थी। तब उसने सिपाही को हुक्म दिया कि 50 कदम आगे जाके वो अपने घोड़े से नीचे उतर आए और उसकी लगाम पकड़े हुए बाबर के करीब से गुजरे। बाबर के कम उम्र हम रिकाबों में 16 साला नौयान कोकलताश की बात सबसे ज्यादा मानी जाती थी। वो बाबर की बहन के साथ उसकी वालिदा के दूध पर पला था। नौयान बाबर के इरादे भांप कर फिक्रमंद हो गया। वलीअहद, आपने अभी अभी तो एक मशक पूरी की है, क्या ये काफी नहीं? बाकी पेचीदा मशकों को कल पर क्यों ना उठा रखें? यूं ही सही, पेचीदा मशकें कल के लिए छोड़ देते हैं, आज सिर्फ हल्की मशकें ही करेंगे। बाबर हंस पड़ा और अपने घोड़े को जोर से एड़ लगाई। घोड़ा फौरन हवा से बातें करने लगा। बाबर ने मुहाफिज को, जो आम रफ्तार से चला आ रहा था, करीब पहुंच के अपने पैर रकाबों से निकाल लिए और जैसे ही उसका भूरा घोड़ा कमीद के बराबर आया, वैसे ही उसकी तरफ झुक के दोनों हाथों से उसकी काठी पकड़ ली और अपने घोड़े के ऊपर से बाआसानी छलांग लगा दी। मुहाफिज का कमीद छलांग से खौफजदा होके भड़का और एक तरफ हट गया। बाबर एक लम्हे तक फजा में मुअल्लक सा रहा, फिर उसके पैर जोर से जमीन से टकरा गए, लेकिन कमीद की काठी उसकी गिरफ्त ही में रही। वाकई उसके हाथ बहुत ताकतवर थे और वो उसे पकड़ते हुए लटका रहा। मुहाफिज ने आनन फानन लपक कर घोड़े को रोक लिया। बाबर के पैरों के जमीन पर रगड़ खाने से नीम दायरा सा बन गया। उसकी रेशमी दस्तार सर से उछलकर दूर जा गिरी, लेकिन वो अपने कदमों पर टिका रहा और सीधा खड़ा हो गया। चेहरे पर अलबत्ता खासी जर्दी छा गई थी। नौयान अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ बाबर के पास पहुंचा और दस्तार उठा के देने लगा, लेकिन बाबर ने गुबार आलूदा दस्तार पर उचटती सी नजर भी न डाली। वो चाबुक को हाथ में पकड़कर मुंह से एक लफ्ज भी निकाले बगैर ही मुहाफिज के लाए हुए भूरे घोड़े पर सवार हो गया। दूसरे ही लम्हे उसने घोड़े को चाबुक रसीद किया और उसे रास्ते की परवाह किए बगैर दरख्तों के दरमियान सरपट दौड़ाने लगा।
घुड़सवार उमूमन बाग के किनारे किनारे वाक़े रास्ते को इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन बाबर सीधा बाग के अंदर से बल खाती हुई कंकरीली पगडंडी पर गुजरने लगा। घोड़ा नालियों को छलांग लगाकर पार करता तो बाबर का सर खुबानियों की मजबूत शाखों से टकराने से बाल बाल बचता। उसने झुक के घोड़े की गर्दन मजबूती से थाम ली थी और इसे सरपट दौड़ाए चला जा रहा था। उसके शानों से टकरा टकरा कर शाखों से टूट जाने वाली खुबानियां पानी में छप छप गिर रही थी। अरे अहमक, तुमने घोड़े को मजबूती से क्यों नहीं पकड़ कर रखा? नौयान गुस्से से बाबर के मुहाफिज पर बरस पड़ा। वली अहद हम लोगों से नाराज हो गए हैं, तुम्हारी वजह से हम सबको सरजनिश झेलनी पड़ेगी। बाबर ने घोड़े को बाग के वस्त में वाक़े शानदार तौर पर आरास्ता बरामदे के सामने रोक दिया। खिदमतगार जो लगाम थामने के लिए भागा भागा बाहर निकला था, बाबर को बरहना सर देखकर दंग रह गया। खुद बाबर का चेहरा ये ख्याल आते ही सुर्ख हो गया कि नानी एहसान दौलत बेगम अभी उसकी ये हालत देखकर फौरन ही समझ जाएंगी कि किस्सा क्या है। खिदमतगारों और मुहाफिजों का इस सिलसिले में सजा भुगतना यकीनी था, क्योंकि शाह फरगाना ने नानी से बाबर को आंख की पुतली की तरह रखने को कहा था और उसी लिए खिदमतगारों और सिपाहियों समेत ये जागीर अता की थी। इतने में करीबी दोस्त लड़के और मुहाफिज डरे सहमे बरामदे के सामने पहुंच गए और बाबर अंदर चला गया तो ये लोग अपने घोड़ों से नीचे उतर आए। नौयान कोकलताश ने बाबर की दस्तार का गुबार झाड़ दिया था और अब उसे हाथों में संभाले हुए था। बाबर टोपी पहनकर इस इत्मीनान के साथ बाहर आया कि अब नानी कुछ भी न पूछेंगी। उसने आए हुए लोगों पर नजरें दौड़ाईं। वो मुहाफिज जो भड़क जाने वाले घोड़े की लगाम को थामे नहीं रह सकता था, माफी मांगने के लिए बाबर के कदमों पर सर को रखने को लपका, लेकिन बाबर ने उसे फौरन ही घुटनों के बल बिठा दिया और खुद मुड़ के नौयान कोकलताश की तरफ रुख कर लिया। नौयान को देख के हंसी आती थी। दस्तार को दोनों तरफ से थामे यूं संभाल संभाल के चल रहा था, गोया कोई नाजुक और बहुत ही कीमती सुराही उठाए हुए हो। मुहाफिजों और करीबी अहबाब को डांट सुनने की तवक्को थी, लेकिन सुना उन्होंने कहकहा। बाबर बच्चों की तरह सर पीछे की तरफ झुका के कहकहे लगा रहा था। नौयान कोकलताश ने भी अपने हाथों की दस्तार को अब दूसरी ही नजरों से देखते हुए कहकहा लगाया। दूसरे लोगों के सरों से भी पहाड़ टल गया और वो भी हंसने लगे। फिर बाबर हंसी रोक के उस मुहाफिज की तरफ मुड़ा जिसका घोड़ा भड़क गया था और बोला, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। मुहाफिज इतना बड़ा इनाम पाकर बार बार सर को ताजीमन खम करता हुआ धीरे धीरे उल्टे कदम पीछे हट गया। तब बाबर ने नौयान से कहा, नानी जान को भिनक भी न लगनी चाहिए। हाँ वलीअहद, हमारी भी यही ख्वाहिश है। नौयान की बाछें खिल उठी और उसने अपने साथियों को आंख मारी। वो सब लड़के थे और जानते थे कि लड़कपन के राज कैसे होते हैं। उसूल तालीम उनमें से तकरीबन सभी को गरा गुजरता था। बाबर को याद आ गया कि आज उसे मुअल्लिम से दर्स लेना होगा और कमसिन मिर्जा की तबीयत एक बार फिर मुकद्दर हो गई। शहर के बाहर वाली हवेली अपने शानदार माहौल, बहुत ज्यादा आरास्तगी और नक्शी दरवाजों के साथ महल की याद दिलाती थी। बाबर को इस इमारत के सिर्फ एक ही कमरे से दिलचस्पी थी। मुअल्लिम उसका इंतजार कर रहा था, फिर भी वो उसी कमरे की तरफ मुड़ गया जिसमें उसकी महबूब किताबें रखी हुई थी। उसे लगता था जैसे सुनहरे औराक और मखमली और चर्मी जिल्दों के अंदर अजीम शुआरा की सांसें महफूज हों। उसे फिरदौसी, सादी और नवाई के सैकड़ों अशआर ज़बानी याद थे। बाबर ने फरहाद व शीरी निकाली और दूर दराज हरात में रहने वाले शायर मीर शेर नवाई उसके तसव्वुर की निगाहों के सामने आन खड़ा हुआ। अंदजान का मीर इमारत फजलुद्दीन, जिसने हरात में तालीम हासिल की थी, इस हवेली सुनहरे रंगों के गुलबूटों से आरास्ता बरामदे और संगे मरमर के हौज की तामीर के दौरान बाबर को मीर अली शेर नवाई के बारे में अजीब अजीब बातें बताता रहता था। फजलुद्दीन हरात से मारूफ मुसव्विर बहजाद की बनाई हुई नवाई की मशहूर तस्वीर की एक नकल भी अपने साथ लाया था। मीरे इमारत को इस अजीम शायर से बाबर की गहरी दिलचस्पी का इल्म हुआ था, तो उसने ये नकल उसे नजर कर दी थी। बाबर ने फरहाद व शीरी के जखीम कलमी नुस्खे से तस्वीर को निकालकर अपने असबाक के दफ्तर में रख लिया। दर्स का वक्त हो चुका था। मुताले के कमरे के वस्त में मुअल्लिम रेशमी गद्दे के ऊपर बैठा हुआ था। घनी घनी भवें, पेट तक लटकती हुई सफेद दाढ़ी और सर पर बड़ा सा इमामा। उसने फारसी में फिक्र पढ़ना शुरू किया। बाबर अरबी और फारसी की अच्छी इस्तेदाद रखता था। कुरान की बहुत सी सूरतें बड़ी खुशी से ज़बानी सुना सकता था और उसे कानून से भी दिलचस्पी थी, लेकिन उस वक्त उसके अंदर जोश उमड़ पड़ा था। शरारत की सूझ रही थी। कोई जाली कुव्वत कुछ कर गुजरने को बेताब थी और उसे बेहिस्सो हरकत बैठकर सबक पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा था। उसने सोचा, लेकिन मुअल्लिम की बातें सुनी ही क्यों जाएं?
सुनने का ढोंग भी तो किया जा सकता है और साथ ही साथ फरहाद के कारनामों से मुताल्लिक अपने शेर को भी दिल ही दिल में दोहराया जा सकता है। दलेरी अगर सीखना चाहते हो तो बांकों से सीखो, दलेरों से सीखो। बाबर ने मौल्लिम की नजर बचाकर तस्वीर दफ्तर के अंदर से निकाली। लंबे स्याह चकमान में मलबूस नवाई छड़ी की टेक लगाए खड़ा था और उसकी आंखों में नेकी चमक रही थी। बाबर ने दिल ही दिल में सवाल किया, ए अजीम अमीर, अगर मुझे आपसे शर्फ़े मुलाकात हासिल हो और अगर मैं इन सब अजदहों और देवों पर जो मेरी जिंदगी के रास्ते में हायल होंगे फरहाद की तरफ फतह हासिल कर लूं, तो क्या आप मुझे शायरी की तलिस्मी दरवाजे की कलीद इनायत कर देंगे? मौल्लिम अपने गद्दे पर से चुपके से उठा और गैर मामूली तेजी के साथ बाबर के पास पहुंच गया। बाबर तस्वीर को छुपा न सका। इंसान की तस्वीर है, मौल्लिम ने सख्त लहजे में दरियाफ्त किया। सबक की बजाय तस्वीर पर तवज्जो, ये तो शरन ममनू है। उस्ताद मोहतरम, ये तस्वीर हरात से लाई गई है, मुलाहजा हो, ये हैं अजीम मीर अली शेर। मौल्लिम नवाई की शायरी के तज़किरे सुन चुका था लेकिन खुद कभी पढ़ी नहीं थी। मेरे शहजादे, इंसानी तस्वीरें बनाना, देखना और देना लेना सब शैतान की हरकत है। मुझे दीजिए ये तस्वीर, लाइए। मौल्लिम साहिब इतने नाराज हैं तो कौन जाने तस्वीर को लेकर उसके टुकड़े टुकड़े न कर डालें। बाबर ने सोचा और कहा, जी नहीं। उसने ये अल्फाज इतने सख्त लहजे में कहे कि मौल्लिम वलीअहद के गुस्से से खौफजदा हो गया, लेकिन उसने दर्स रोक दिया और बाबर की नानी इस्तान दौलत बेगम से उसकी शिकायत करने चला गया। और फिर कोई 55 साल की एक फर्मा अंदाम औरत अपने इतलसी लिबास से सरसराहट पैदा करती हुई मुताले के कमरे में दाखिल हुई। बाबर जल्दी से उठकर नानी को कोर्निश बजा लाया। इस्तान दौलत बेगम ने उस बेचारी तस्वीर को ले लिया और गहरी दिलचस्पी से देखने लगी। मीर अली शेर के चेहरे में तो लगता है कि फरिश्तों की सी कुछ सिफात पाई जाती हैं, वो बोली, और ये ऐसी बात थी जिसकी मौल्लिम को कतन तवक्को न थी। फिर उसने अपने रेशमी लिबास के आंचल से चेहरे को ढकते हुए मौल्लिम की तरफ रुख करके कहा, मोहतरम मौल्लिम, ये तस्वीर हरात में उलमाए दीन की इजाजत से बनाई गई है। फिर वो बाबर से मुखातिब हुई, मौल्लिम साहिब यकीनन दुरुस्त फरमा रहे हैं। अजीज मिर्जा, फिक्र के दर्स में तस्वीर खा वो कैसी भी क्यों ना हो, देखना नाजायज है। वक्त आने पर इंशाअल्लाह ताला आपको मुल्क की इनाने हुकूमत संभालनी होगी। फिक्र तो आपको अव्वल ता आखिर जाननी ही है। रही ये तस्वीर तो इसे मैं अपने पास रखूंगी। बाबर ने नानी से पल भर के लिए तस्वीर मांगकर दोबारा किताब के अंदर रख दी। मैं अपना ख्वाब आपके सुपुर्द कर रहा हूँ, उसने किताब को इस्तान दौलत बेगम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। नानी ने नवासे की इस बात को बहुत पसंद किया। क्या मीर अली शेर को अंदजान आने की दावत दी जाए? ओह, क्या ये भी मुमकिन है? बाबर की आंखें चमक उठी। मीर अली शेर समरकंद आकर भी तो इसकी शान दोबाला कर चुके हैं। जहां तक फरगाना का ताल्लुक है तो इसकी खूबियों से सारा जमाना वाकिफ है। मुझे खबर मिली है कि मीर अली शेर बहुत ही शरीफ और पाको पारसा इंसान है। वो हमारे यहाँ तशरीफ लाएंगे तो मोहतरम मौल्लिम को इसका यकीन आ जाएगा। मौल्लिम का चेहरा खुशी से खिल उठा और उसने खड़े होकर आमीन कहा। दोपहर तक हवेली के अंदर सन्नाटा छा गया। लोग प्यास की शिद्दत से बुरी तरह निढाल थे और बेचैनी के साथ शाम के मुंतजर। आलीशान मकानात के मालिक आली नसब अफराद भूख प्यास से बचने के लिए ठंडे ठंडे कमरों में नींद के सहारे वक्त काट रहे थे। बाबर को किसी तरह नींद ही नहीं आ रही थी। उसे शायराना ख्वाबों ने सख्त मुस्तरब कर रखा था। अपने कमरे में तन्हा रह जाने के बाद वो कागज कलम लिए बैठा रहा। शेर कहने की कोशिश की, लेकिन दूसरे शुआरा के जो अशार उसे याद थे उनके सिवा जहन में कुछ आ ही नहीं रहा था। तब उसने एक दफ्तर उठाया और वादी फरगाना के मुतालिक अपने तासुरात कलम बंद करने लगा। यहाँ बुलंद कोहिस्तानी सिलसिला दूर दूर तक फैला हुआ है और बयाबानी तायरों की इफरात है। हमने आखसी से कुछ फासले पर वीरान इलाके में सफेद हिरन देखा था। ये हिरन मुर्गिलान के कुर्बो जवार में भी पाए जाते हैं। कितनी खूबसूरत थी वादी फरगाना। कितना मुश्किल था इसके सारे हुस्न और काबिल दीद मकामात का अल्फाज में तज़करा करना। लोग मीर अली शेर के पास हरात जाते थे तो सिर्फ अपनी शायरी लेकर ही थोड़ी जाते थे। बाबर लिखने में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि उसे घोड़े की टापें भी ना सुनाई दी। टापें तो उसे उस वक्त कहीं जाके सुनाई दी जब घुड़सवार दरवाजे के बिल्कुल सामने पहुंच गया। चंद ही लम्हात के बाद सन्नाटे में डूबी हुई हवेली के किसी कमरे से खवातीन की गिरियाउजारी की सदाएं बुलंद हुईं। बाबर ने चौंक के सर उठाया। ये क्या हो गया? रोने की आवाजें इस्तान दौलत बेगम की रिहाइश वाले हिस्से से आ रही थीं और बराबर तेज होती जा रही थीं। बाबर फौरन ही सर पर पांव रखकर नानी के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। उस कमरे का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ था। बुजुर्ग खातून के सर के ऊपर से रुमाल खिसक गया था। वो रुमाल को हाथ से मल रही थी। अपनी बेटी
कतलोग निगार खानुम के खत को बार बार पढ़ रही थी। डुबडुबाई हुई आंखों को अल्फाज वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आ रहे थे। आखसी से मिर्जा उमर शेख के इंतकाल की खबर लेकर आने वाला बेग दीवार की टेक लगाए बमुश्किल ही खड़ा हो पा रहा था। उसने सस्ताए बगैर घोड़े पर कोई 25 कोस का फासला तय किया था और सरापा गुबार से अटा हुआ था। वालिद के इंतकाल की खबर आफत नागहानी की सी थी।